Navkar Institute for CA. I am Amit Dungrani and I teach strategic management at the interlevel. So in this video we are going to talk about two important things. सबसे पहला तो strategic management को पढ़ना कैसे, prepare कैसे करना है, and second most important pass कैसे होना है, clear कैसे करना है ये पेपर. So when we talk about the group 2 नो, group 2 में पेपर 7 में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है. प्रॉब्लम आने का जेन्युइन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. EIS SM दोनों कॉम्बिनेशन है, इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट. Problem is that what you do, you cover whole of the EIS, you skip some chapter of SM. Some students do what? They cover whole of the SM and skip some chapter of EIS. And some are superstar who skip some chapters in both the parts. So that is the reason that you are not able to clear the exam. I am going to tell you how to prepare in a proper way and particularly strategic management. See, understand, strategic management में there are lots of myths. People says that you have to write exactly module language. Many people says that whatever you write you will not get marks. Whatever I study I am not able to remember it. कितना भी concept मुझे पता हो फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ. See, understand, these are not the cases. Your preparation, your level of preparation is the concern. That is the reason you are not able to clear the exam. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटेज का. टोटल 8 चैप्टर है, उसमें चैप्टर नंबर 2, 6 एंड 8 इसका वेटेज है 10 to 12 मार्क्स का ऑन द बेस ऑफ द पास्ट पेपर एनालिसिस. और बाकी के चैप्टर का वेटेज होता है समवेयर बिटवीन 6 to 10 मार्क्स बिकॉज ऑप्शन होते हैं, तो उस चक्कर में वेटेज इज गोइंग टू वेरी. तो 2, 6 एंड 8 these are weightage of 10 to 12 marks. Other chapters are between the weightage of 6 to 10 marks. Now we'll understand first part of this video. पहले पार्ट में we are going to discuss how to prepare. देखो 4 स्टेज का प्रोसेस है. सबसे पहले if you don't have clarity about the concept, no, you can't do preparation. Now clarity of concept, everyone talks about it कि you need to have clarity of the concept. But sometime what happened, sometime काफ़ी बच्चे आके बोलते हैं कि सर कितनी भी बार पढ़े we are not able to understand कि what exactly they want to say. What is the reason behind it? तो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ सकता है बाय ओनली वन वे, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स. आपको मॉड्यूल उठाना है एंड यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी लाइन. व्हेन वी रीड द कॉन्सेप्ट, नो, व्हेन वी रीड द बुक, नो, नॉर्मली व्हाट वी डू, काफ़ी सारे लाइन स्किप कर देते हैं, काफ़ी वर्ड के मीनिंग पता नहीं चलता तो आगे बढ़ जाते हैं. यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दैट. कॉन्शियस रीडिंग होना चाहिए फर्स्ट टाइम, वॉट एवर टाइम इट इज गोइंग टू टेक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो रीडिंग है ना, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग वाला रीडिंग. तो जैसे आई टेकन अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 का मैंने सवाल लिया. उसके बाद फर्स्ट व्हाट आई एम सपोज टू डू, तो मॉड्यूल में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मुझे पढ़ लेना है. जो वर्ड का मीनिंग पता नहीं चलता उसको सर्च करके प्रॉपरली क्या लिखा है वो जस्ट समझ लेना है. Once you understand this, no, your concept is clear, trust me. You don't need to run here and there for the concept. And if you face any problem in understanding what is written in the module, you can check video of Navkar Digital Institute. Because our videos are completely according to the module. Word by word, line by line module को explain किया है. So it will help you. So first you get the understanding. Once you are done with the understanding, you understood the concept. Now तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि ये सवाल मेरे को आ गया है. Immediately you need to check, that is the second step of the preparation, where you need to write. मतलब क्या करना है, आपने अगर एक सवाल पढ़ा for 30 minutes, you understood it properly. for 20 minutes what is strategic management, उसके importance, benefit, ये सब आपने समझ लिया. Then you have to start writing it. Trust me, when you write you are not able to write more than 3 minutes. If सवाल पूरा होगा 2 पेज का तो भी आधे पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाओगे. Here is the exact problem. You understood the concept but you don't have idea what to write. Now in this second step, first you will write it, so you will get clarity that yes I know the concept but I don't know how to write it. So in the second step you have to create notes. तो ये second writing वाला होगा. पहला understand it, second writing करना है क्योंकि आपको concept पता है. That is the reason you are able to identify कि कौन सा important line है जो मुझे notes में include करना है, किस तरीके से लिखना है उसका clarity मिल जाएगा. Then you have to create notes. This is the second step. After second step, third step, your language should look like module language. So in that case, the only way is you need to remember keywords. अगर आपको keywords याद होंगे तो ही आप ये कर पाओगे. तो third, after making notes, you have to learn the keyword. This is the way you are supposed to prepare. First, understand the concept, word by word आप समझ लो. दूसरा, उसके नोट्स बना लो, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा. थर्ड, यू नीड टू रिमेंबर कीवर्ड. एंड फोर्थ, एट द एंड ऑफ एनी चैप्टर, जो हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, वी डोंट डू एनी राइटिंग प्रैक्टिस. अकाउंट्स आपको अच्छा लगता है बिकॉज यू राइट इन अकाउंट. आपको लॉ अगर प्रॉब्लम आती है, वाई? बिकॉज यू डोंट राइट इन लॉ. सेम वे ऐसे में प्रॉब्लम आएगी, वाई? बिकॉज यू डोंट राइट इन. व्हाट आई एम टेलिंग यू, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर,
एटलीस्ट 5 से 7 सवाल यू नीड टू राइट. That writing practice is going to help you. You prepare everything, you remember everything and you don't write, and in exam आपको लिख के बताना होता है. तो अगर आपने घर पे प्रैक्टिस ही नहीं किया राइटिंग का तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो दिस इज द वे. 4 स्टेप का प्रोसेस है. पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, दूसरा ट्राई करो लिखने का और नोट्स बना लो, तीसरा कीवर्ड याद कर लो, एंड 4th चैप्टर खत्म होने के बाद अपने तरीके से एक बार आंसर लिख लो. सो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएम. नाउ वी टॉक अबाउट दी कैसे लिखना है. एसएम के पेपर को, थियोरी पेपर को लिखना कैसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. इफ यू आर एबल टू राइट इट इन अ राइट वे यू विल गेट गुड मार्क्स. सबसे पहले नो अननेसेसरी पॉइंट्स, है ना. वी कीप क्रिएटिंग सिंगल लाइन के पॉइंट विच इज समटाइम नॉट रिक्वायर्ड. नो डाउट अगर कोई ऐसा सवाल है जैसे स्टेप ऑफ द बेंच मार्किंग तो उसमें यू हैव टू राइट बाय पॉइंट. बट अगर किसी ने ये बोला कि एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, आर यू सपोज टू मेक सिंगल लाइन पॉइंटर्स? नो सिंगल लाइन पॉइंटर्स. हाँ, पॉइंट बनाने हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यू आर नॉट सपोज टू राइट इन पॉइंट. यू हैव टू राइट इन पॉइंट, but when it is an introductory kind of answer, in that case single line के point नहीं बनाने, you need to make para point. para point means what? एक आपने point बनाया, उसके 3-4 लाइन है, उसके बाद दूसरा point स्टार्ट होता है, उसके 3-4 लाइन है, उसके बाद तीसरा point स्टार्ट होता है, उसके 3-4 लाइन है. जिस सवाल में, या तो जैसे कोर कॉम्पिटेंसी, एक्सप्लेन कोर कॉम्पिटेंसी, if you go through the book there is no point in that, but you have to make point. वो भी सिंगल लाइन के नहीं, 3 से 4 लाइन के, 4 से 5 लाइन के. तो पैरा पॉइंट बना के लिखना है. जहाँ पे पॉइंट्स है वहाँ पे पॉइंट्स फॉलो करना है. 2 थिंग्स. फर्स्ट, नो अननेसेसरी पॉइंट्स. सेकंड, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी टाइप की चीज़ है वहाँ पे पैरा पॉइंट बनाना है, जहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ पॉइंट देना है ना. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जाम, कैसे लिखना है उसमें. तो what happened if there is a question like write a limitation of the strategic management, what we do? We immediately start writing सबसे पहला cost, environment is complex and so forth, so on so forth. This is not the way you are supposed to represent the answer. कोई भी आंसर है डायरेक्ट पूछा हुआ है, फिर भी यू नीड टू राइट सम ऑफ द इंट्रोडक्शन, लाइक व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो उसके इंट्रोडक्शन में लिख देना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टूल विच इज यूज्ड बाय द मैनेजर टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्रॉपर वे. इट इज अ टूल बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू मैच अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. It is a process of formulating and implementing the strategy overall in the overall organization, but there are some of the limitation of the same. और उसके बाद नीचे limitation लिखने. By this क्या होगा, एक क्षमा बन जाएगा about the answer. You will get the context of the answer और उसके बाद आंसर आएगा तो it will look good, है ना. तो पहला no unnecessary point. दूसरा फिर से बता देता हूँ, पैरा पॉइंट बनाना है जहाँ पे इंट्रोडक्टरी टाइप का सवाल है. अगर पॉइंट ही दिए बुक में तो डायरेक्टली पॉइंट लिखना है. एंड थर्ड, इंट्रोडक्शन हर सवाल का लिखना है. केस स्टडी बेस्ड सवाल हो कि कोई भी हो, इंट्रोडक्शन डालना है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर पेपर शुड लुक गुड. हाउ कैन इट लुक गुड? इट कैन लुक गुड ओनली बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यही सवाल की बात करता हूँ मैं. देखो 2 तरीके से लिखा हुआ आंसर है, आप खुद जज करना कि किसमें यू विल गेट मोर मार्क्स. एक सवाल है डायरेक्ट 1 by 1 4 लिमिटेशन है, वो 4 लिमिटेशन लिख दिया है पॉइंट वाइज और दे दिया आंसर. दूसरा आंसर जिसमें ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसके बाद नीचे एक फिगर ड्रॉ कर दिया है, ऊपर ऐसा बॉक्स बनाया है जहां लिखा है लिमिटेशन और उसके नीचे 4 बॉक्स बना दिए, चारों बॉक्स में एक एक लिमिटेशन लिखा हुआ है. दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. और उसके बाद 1 by 1 कॉस्ट, व्हाई इट इज कॉस्टली, सेकंड लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन एंड फोर्थ, चारों की डिस्क्रिप्शन दिया है. तो ये क्या हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर. इससे पेपर चेकर को क्लियरली दिख भी जाएगा व्हाट यू नो एंड योर आंसर विल आल्सो लुक गुड. So this is one of the important thing where you are going to differentiate from other students who are going to give the exam. And last and the most important thing, ये सब करना है बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, 2 चीज. एक कीवर्ड जो हमने प्रिपरेशन में याद किए थे, आपके आंसर में कीवर्ड आना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड, यू हैव टू पुट एग्जांपल्स, और जितने करंट एंड लाइव एग्जांपल दे पाओगे दैट इज बेटर. अगेन जो क्वेश्चन हमने लिया है लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स. इन दिस rather than giving all the gyan, you can put the example that sometime you can't predict external environment, like there is impact of the coronavirus and because of that overall business has got disturbed. This is what external threat. So sometimes you can't get idea about the complexity because environment is complex, so you can't predict it. इस टाइप की एग्जाम्पल डालोगे तो you'll get more marks. तो राइटिंग के लिए 5 चीज याद रखनी है आपको. पैरा पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट हो वहीं पे पॉइंट लिखने हैं, आपको जो इंट्रोडक्शन देना है हर आंसर का, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है और कीवर्ड और एग्जाम्पल डालना है.
And if you want to know about the keyword, example, concept, clarity, everything you will get by Navka Digital Institute app. I hope now you people are clear, and trust me, if you follow this approach, out of 40 you can easily score 30 marks and फिर IT में ज़्यादा लोड नहीं रहेगा. I hope all of you are safe and doing well. You are focused on the study. Happy learning. Thank you.